Good evening, everyone. How are you all? Ma'am, I'm a, fine. And how are you, ma'am? Good evening, ma'am. I am also good. Happy Navratri to all of you. Yeah, ma'am. Thank you, ma'am. Have you done your homework? Yes, ma'am. What I gave you yesterday? Day before yesterday. है ना? Ma'am, write 5 sentences of coordinate conjunction. Write 5 subordinate conjunction. Write 5 correlative conjunction. Write 5 sentences of compound conjunction, ma'am. This is homework. Bilkul. Write one example each in chat box quickly, everyone. Good evening, ma'am, and all of Yes, make the sentence quickly. Everyone make one sentence of each. What homework I gave you. I both love and admire him. Okay, Amrapali, correct. I think you should use the conjunction both. You should use conjunction and. Okay, and आपकी conjunction है ना? ठीक है. Correct. Make more sentence. Quickly, everyone, make sentence. Correct. Correct, Mansi. You can eat cake with or form. Very good. Nuzat. Correctly. I hope I pronounce your name correctly. चलिए make sentence everyone quickly.
मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। Yes. What are you saying? Wait for 2 minutes. We will start the class. Okay. Quickly make sentences. Everybody. Have we completed our conjunction? I think no. Sorry. Is the screen visible to all of you? Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Chali, let's start. Ma'am. Okay. Revise the day before yesterday class. We will do today another two conjunction. What we have completed? We have completed what is conjunction. Conjunction क्या होता है? Conjunction is used to connect word, phrases or clauses. Second, what is phrases? Phrases means group of words that make sense but doesn't require a complete subject verb object agreement. Next we will do coordinating. We had done coordinating conjunction, subordinating conjunction. ठीक है? Clear है? Is there any doubt? Ask me. चलिए let's start. Okay. What is correlative conjunction? Correlative मतलब होता है relate कर कर बताना. That means these are always in pair. ये हमेशा pair में रहेंगी. Got it? Correlative conjunction is used in pair. Pair में हमेशा use होंगी ये. जैसे कि हम use करते हैं ना, would you like tea और coffee, है ना? और जब आता है वैसे ही either और होता है. Either this or this. या तो या फिर या. Neither nor. Neither मतलब ना तो ये और ना ही ये. I neither like tea nor coffee. ना मुझे चाय पसंद है ना मुझे कॉफी पसंद है. I neither like tea nor coffee. Okay? Are you comfortable in it? Yes, ma'am. Problem? No. ठीक है. मेरा फेस दिखने से कुछ नहीं होगा, है ना? There is camera issue maybe. The camera is not working properly. That's why I'm unable to open my camera. But let's focus on the PDF. Got it? चलिए. Correlative conjunction always use in pair. हमेशा pair में use होंगी. Pair मतलब दो के form में use होंगी. Either or, neither nor. ठीक है? Either or ये आपका positive sense में use होगा.
और नाइदर नॉर वाला ये आपका नेगेटिव सेंस में यूज होगा। व्हाट वुड यू लाइक आइदर टी और कॉफी? ठीक है, आज चाय लेंगे या कॉफी लेंगे, तो आप ऐसे पूछ सकते हैं, आइदर टी और कॉफी। आई डू नॉट लाइक, आई नाइदर लाइक टी नॉर कॉफी, तो ये नेगेटिव में है। नेगेटिव जब भी मैं आपको बोलूंगी, नेगेटिव का मतलब होता है नॉट के सेंस में, नहीं के सेंस में यूज होगा। और आइदर वाले जो वर्ड होते हैं ये पॉजिटिव सेंस में यूज होते हैं। ठीक है, आप लोग अगर मुझसे पूछे कि मैम हम आइदर नॉर की जगह आइदर और भी तो यूज कर सकते हैं, है ना। आप बोल सकते हैं मैम कैन वी यूज आई डू नॉट लाइक आइदर टी और कॉफी, है ना। समझ आया? तो ऐसा नहीं करना। अगर आप नेगेटिव सेंस में यूज कर रहे हैं, यूज नाइदर नॉर, और अगर आप पॉजिटिव सेंस में यूज कर रहे हैं, यूज आइदर एंड और। गॉट इट? नेक्स्ट इज नॉट ओनली बट ऑल्सो। He is not only surprised me but also bring gift for us. He is not only surprised. Please cooperate with my pen writing. ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ फोकस करके उसे अपनी नोटबुक में लिखिए। He is not only surprised me but also bring gift for us. ठीक है, gift for us। समझ आया? तो दोनों हमने एक ही सेंस में यूज करे। He is not only surprised me but also bring gift for us। समझ आया? ऐसे करके आप इन्हें अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस में यूज करेंगे। याद रखिएगा, जब भी आप इन सेंटेंस को यूज करेंगे तो ये एक साथ आएंगे एक सेंटेंस में। दो येट, ठीक है, येट मतलब अभी तक। ठीक है, समझ आया? वेदर, और ये वाला जो वेदर है, एक वेदर होता है WEATHER, इस वाले वेदर का मतलब होता है मौसम, और इस वाले वेदर का मतलब होता है WHETHER, इस वाले वेदर का मतलब होता है चॉइस। ठीक है, समझ आया? जो WE वाला वेदर होता है इसका मतलब होता है मौसम। ठीक है, आई डू नॉट नो वेदर ही विल कम और नॉट, मुझे नहीं पता कि वो आएगा या नहीं आएगा। आई डू नॉट नो वेदर ही विल कम और नॉट। समझ आया? गॉट इट? इज देयर एनी डाउट? प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल एवरीवन। अगर आपसे पूछा जा रहा है, आई थिंक नेटवर्क इज प्रॉपरली वर्किंग, जो मैं पूछ रही हूँ आप पे आपके पास टाइम टू टाइम कन्वे हो रहा है। एम आई राइट? Hello, ma'am. Yes. यस। Ma'am, could you please repeat the weather sentence? Why you have attended the class just now? No, no, ma'am. I attended class, but I can't hear, ma'am. Yes, am I audible? मैम आपकी आवाज आ रही है Yes, लेकिन स्क्रीन नहीं दिख Yes. रही।
Okay. Sorry for inconvenience. चलिए, got it? What I told you, I repeat, okay? I hope I am audible. If I am not audible, do not lose your patience, ठीक है? Have some patience. There is no voice, maybe because of network. Have some patience, the network will adjust automatically and I am audible, okay? If I am not audible You are or the audible. PPT, am I audible? Yes, ma'am. Yes. In case I am not audible, Yes, ma'am. have patience and write in chat box that ma'am you are not audible, okay? Or speak through your mic that ma'am you are not audible. Got it? चलिए. I repeat what I teach you. Correlative conjunction. Correlative मतलब होता है always use in pair. हमेशा ये पेयर में यूज होगा. पेयर मतलब होता है जोड़ा. ठीक है? जैसे आई हैव पेयर ऑफ शूज. पेयर ऑफ शूज मतलब क्या होता है कि दो आपके पास जोड़े हैं. गॉट इट? तो ये जो कोरिलेटिव कंजंक्शन यूज होगा इट इज ऑलवेज यूज्ड इन पेयर. ठीक है? जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो. नॉट ओनली बट ऑल्सो मीन्स कि आप नॉट ओनली मतलब सिर्फ इतना ही नहीं, बट ऑल्सो मतलब बट कितने यूज करते हैं बताइए. व्हाट इज द यूज ऑफ बट? इतना ही नहीं पर ये भी. ठीक है? ऐसे आप हिंदी यूज कर सकते हैं. गॉट इट? चलिए, कोरिलेटिव का मतलब सबको क्लियर है? Yes, ma'am. कोरिलेटिव मीन्स ऑलवेज यूज Yes, इन ma'am. पेयर. Yes, ma'am. ठीक है? हाँ जी. Hello, ma'am. Meaning meaning is pair. हाँ, इट इज यूज इन पेयर. मीनिंग पेयर नहीं, ये हमेशा पेयर में यूज होंगे. जैसे हमने क्या देखा था, वी विल सी लाइक Either अर्लियर, है or. ना? हमने क्या हाँ. देखा था कि क्यूमुलेटिव कंजंक्शन में अल्टरनेटिव कंजंक्शन मतलब चॉइस होता है, एडवर्सेटिव मतलब अपोजिट होता है, रिलेटिव मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड होता है. सेम एज कोरिलेटिव कंजंक्शन मतलब होता है कि ये जो कंजंक्शन यूज होंगी, कोरिलेट मतलब एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं, ये यूज इन पेयर, ये जोड़े के साथ यूज होंगी. आप इनको अकेले यूज नहीं कर सकते. If I am saying Okay. you कि make sentence of correlative conjunction, तब आप इन दोनों को एक साथ लेकर बनाओगे. जैसे either और देखने की कोशिश कीजिए. ठीक है? एक साथ कौन कौन से हैं? आई होप आपको विजिबल होगा प्रॉपरली. आइदर और एक साथ यूज होंगे, नाइदर और नॉर एक साथ यूज होंगे, नॉट ओनली बट ऑल्सो एक साथ यूज होंगे, दो येट. दो मतलब ऐसा बोलते नहीं है कि दो ही वर्क हार्ड येट फेल. वो इतनी मेहनत करता है, फिर भी वो इतनी मेहनत करता है, वो इतनी मेहनत करता है लेकिन फिर भी वो फेल हो रहा है. येट मतलब होता है अभी तक, अगर लिटरल मीनिंग देखे तो. और येट का मतलब आप ये भी बोल सकते हैं फिर भी. समझ आया? वेदर और, वेदर या फिर और एक साथ यूज होंगे, बोथ एंड एक साथ यूज होंगे. आपको ये एक साथ यूज करने हैं. लेट्स सी द एग्जांपल. आई डू नॉट नो वेदर ही विल कम और नॉट. वेदर और. ठीक है? मुझे नहीं पता कि वो आएगा या नहीं. आप सोच रहे होंगे कि वेदर और दोनों का मतलब तो और ही यूज हो रहा है ना? नाइदर मतलब भी नहीं होता है और नॉर मतलब भी नहीं होता है. दैट मीन्स देयर मीनिंग आर साउंड सिमिलर टू यू. इनके मतलब आपको सिमिलर ही लगेंगे. गॉट इट? चलिए, आई होप आपको इसमें प्रॉब्लम हो, आई थिंक आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है. क्विकली मेक वन सेंटेंस. आप लोग खुद से एक सेंटेंस बनाकर बताइए.
चलिए जल्दी एवरीवन, यूज दीज वर्ड्स एंड मेक सेंटेंस। जैसे मैंने आपको अभी नॉट ओनली बट ऑल्सो का सेंटेंस बनाकर बताया था ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ही इज नॉट ओनली सरप्राइज मी बट ऑल्सो ब्रिंग गिफ्ट फॉर अस। उसने मुझे मैं- सरप्राइज ही नहीं करा, बल्कि वो मेरे लिए गिफ्ट भी लेकर आया। Ma'am, Jerry is neither rich nor poor. यस Hello, ma'am. हाँ जी, He not only a kind person but also hard worker. very good. He is not only a kind person but also hard working. Very good. She is not only a novelist but also a poet. Yes, very easy. Why are you all क्या बोल सकते हैं, इतना परेशान क्यों हो रहे थे आप लोग? इतना इजी है ये बिल्कुल, है ना? चलिए दो और येट से सेंटेंस बनाकर दिखाइए मुझे। मेक सेंटेंस फ्रॉम दो एंड येट। Ma'am, I will either go the hike or stay home. यस करेक्ट। हाँ जी, क्विकली मेक सेंटेंस ऑफ दो एंड येट। Ma'am, दो would you go to beach or spend time at home? ठीक है, So he दो sent और the येट gift से हाँ I जी, didn't receive yet. क्या बोल सकते हैं हम? इवन दो, दो को आप कैसे यूज कर सकते हैं? दो का हिंदी मीनिंग कोई मुझे बताएगा? ऐसे बोल सकते चाहे पामे। ओके, यद्यपि दो को आप लिटरल हिंदी में बोलेंगे तो दो मतलब होता है यद्यपि, और अगर हम इसे नॉर्मल इंग्लिश हिंदी में बोले तो फिर भी, है ना, या फिर चाहे की तरह आप यूज कर सकते हैं। यद्यपि दो, मुझे इतना ही हिंदी पता है इसका। इवन दो, ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू सेंटेंस। इवन दो ही स्पीक rudely to me, yet I was polite, है ना? यद्यपि वो मुझसे रूडली बात कर रही थी, फिर भी मैं पोलाइट था। समझ आया? इवन दो मतलब आप कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको ही बताया, वेदर और दोनों का मतलब या ही होता है एक तरीके से। तो वो मुझसे रूडली बात कर रही थी, फिर भी मैंने पोलाइट बात की। समझ आया? दो ही वर्क एंड अचीव Hello, हिज ma'am. गोल। हाँ जी, Ma'am, even though she always fight with me, yet I always understand her. वेरी गुड, करेक्ट, बिल्कुल सही है ना? चलिए, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। Though the book was lengthy, she finished it in just 2 days, yet she found herself craving, correct? Found herself craving more from the story. बिल्कुल ठीक है आम्रपाली, आप आई होप कि आप खुद से सेंटेंस बना रहे होंगे कि डिडंट स्टडी मच दो ही स्टिल पास द एग्जाम। बिल्कुल ठीक है प्रभजोत, यू यूज द दो एंड स्टिल, करेक्ट। Though the book was lengthy, she finished it in just 2 days. Correct, correct. चलिए, let's move forward. Okay, आगे बढ़ते हैं। Compound conjunction. When conjunction is used in group of word, ठीक है, अब धीरे धीरे करके इसकी लेंथ बढ़ेगी। अब जो आपका कंजंक्शन यूज होगा वो ग्रुप ऑफ वर्ड में यूज होगा, ठीक है? किसमें यूज होगा? यूज इट इन ग्रुप ऑफ
वर्ड, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड। जैसे ये वर्ड्स में यूज हो रहा था, ये पेयर में यूज हो रहा था, मतलब ये दो ही है, दो से ज्यादा नहीं है। ये जो पेयर है ना, पेयर मतलब दो होता है, दो मतलब जोड़ा। जैसे आपके शूज होते हैं ना, शू, योर पेयर ऑफ शूज, ठीक है, तो क्या होगा, जोड़ा होगा, एक लेफ्ट का, एक लेफ्ट लेग का और एक राइट लेग का, गॉट इट, एक लेफ्ट फुट का और एक राइट फुट का। तो पेयर मतलब जोड़ा होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड होगा शब्दों का समूह, ठीक है। चलिए लेट्स सी। In order that, condition that, even if, as well as if, so that, provided that, these are examples, ठीक है। क्या एग्जाम्पल है आपके पास? इन ऑर्डर दैट, देखिए ये पेयर में नहीं है, पेयर में नहीं है मतलब ये दो से ज्यादा है, ठीक है। तीन वर्ड दिख रहे हैं आपको। पेयर मतलब, आई होप आप सबको क्लियर होगा, पेयर मतलब दो, जोड़े। ऑन कंडीशन दैट, इवन इफ, एज वेल एज, ठीक है, एज इफ, सो दैट, प्रोवाइडेड दैट। समझ आया? ये कुछ एग्जांपल है आपके लिए। He scolded me as if he were my father. वो मुझे ऐसे डांट रहा था जैसे वो मेरे फादर हो। He scolded me, ठीक है, he scolded me as if क्या है आपकी कंजंक्शन, ठीक है। as if मतलब यहाँ पर यूज हो रहा है जैसे। he were my father, वो मुझे ऐसे डांट रहा था जैसे वो मेरे फादर हो। एक्सक्यूज मी मैम। ये यहाँ पर, हाँ जी, मैम जहाँ पर वर्ब यूज हुआ है ही के बाद वॉज नहीं होता है? करेक्ट करेक्ट, maybe there is mistake. He Oh. scolded me as if he was my father. Correct. Yes, Gurpreet, I will correct it. थैंक यू मैम। Make it correct here. Do it was. Okay, correct in your notebook while you making sentence. Make it was. हेलो चलिए. हेलो He मैम scolded me as if he was my father. Yes. मैम दोबारा बताना, वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, लेफ्ट हो गई। Okay. Have some patience. ठीक है. इतना आप सभी को क्लियर है? अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? व्हाट वी डू, कंपाउंड कंजंक्शन। कंपाउंड कंजंक्शन मतलब ये जो कंजंक्शन होगी ये ग्रुप ऑफ वर्ड में यूज होगी। ग्रुप ऑफ वर्ड मींस जैसे कि आप देख रहे हैं, इन ऑर्डर दैट, ऑन कंडीशन दैट, इवन इफ, एज वेल एज इफ, so that, provided that. He scolded me as if he was my father. तो यहाँ पर कंजंक्शन क्या यूज हुआ है? यहाँ कंजंक्शन यूज हुआ है as if. Got it? Next. I will give you money. ठीक है, मैं आपको पैसे दूंगा on condition that, एक शर्त पर, ठीक है। कंडीशन मतलब यहाँ पर क्या है? शर्त, ठीक है। I will give you money on condition that you will not misuse it. ठीक है, मैं आपको पैसे दूंगा। ये एक आपका सेंटेंस हो गया। I will give you money. It is your conjunction. You will not misuse it. तुम उसका गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। I will give you money on condition that you will not misuse it. Okay? On condition that मतलब इस शर्त पर। Quickly make one sentence on condition that. एक सेंटेंस बनाकर दिखाइए मुझे इस ग्रुप ऑफ वर्ड पे। I will give you a book for reading on condition that you will we give it back to me. Ma'am, Correct. she did not cheat on the test. Mansi, use the group of word on condition that. Use the which condition? Use the
कंजंक्शन ऑन कंडीशन दैट। इस कंजंक्शन को यूज कर कर आपको सेंटेंस बनाने हैं। ओके मानसी? मीन्स सारे एक ही सेंटेंस में आना चाहिए। सारे नहीं, सिर्फ ऑन कंडीशन दैट। ये वाला जो मैंने आपको पढ़ाया है ना अभी, ऑन कंडीशन दैट मतलब इस शर्त पर। I will fix your meeting on condition that you will both were not fight again. सॉरी गुरप्रीत, तो मेक इट मोर ग्रामेटिकली क्लियर। I will fix your meeting with each other on a condition that you will not fight with each other. If you not will- no, if you not will Not fight fight. with. ठीक है ठीक है, ए यूज नहीं कीजिए, ऑन कंडीशन ए दैट नहीं होगा। ठीक है, Okay. करेक्ट करेक्ट। What about others? I think 20 students or more than that are taking classes. Only 2 or 3 Ma'am, are responding. What is this? ma'am, हाँ जी। I will spend my time for you. I will spend time for you on condition that you don't forget it. Sorry, please repeat. I will spend my time for you on condition that you don't forget it. Okay, okay, correct. ठीक है, विद यू भी हो सकता है, फॉर यू भी हो सकता है। अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हैं कुछ तो फॉर यू बोलेंगे आप, बिल्कुल ठीक है। करेक्ट पर प्रभजोत, आई एम सीइंग योर सेंटेंस। यस, आई होप इट इज क्लियर। इवन इफ, फिर भी, she will succeed in life even if she faces some initial failure। ठीक है, वो लाइफ में सक्सेसफुल हो गई। ठीक है, फिर भी यार, जबकि मैं आपको प्रॉपर हिंदी नहीं बता पाऊंगी इन सेंटेंसेस की, इन वर्ड्स की, बिकॉज द मीनिंग ऑफ हिंदी विल चेंज अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस। इवन इफ हो गया, ऑन कंडीशन दैट, कुछ वर्ड्स आपको कंजंक्शन में देखने को मिलेंगे जिनकी हिंदी आप हर जगह यूज कर सकते हो, बट अदर्स आर चेंज विद द टाइप्स ऑफ सेंटेंस व्हाट यू आर मेकिंग। ओके, so please do not focus on my Hindi. I am just saying, translate it for you so that you can understand it. She will succeed in life even if she faced some initial failure. वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो गई। even if, आप क्या बोल सकते हैं even if को हिंदी में, बताइए मुझे। हिंदी में तो पता भावें की कह सकते हैं जी, पंजाबी च तां क्या कह सकते हैं? पंजाबी च तां बोलते हैं जी भावें के। हिंदी में बोलेंगे इसको ओके गुरप्रीत, फिर भी चलिए। बोल सकते। एनीबॉडी? हाँ, फिर भी ही बोलेंगे। ठीक है, चलिए। उसको लाइफ में सक्सेस मिली जबकि, है ना, भले ही आप बोल देंगे इसको, भले हाँ ही, है ना, भले ही साउंड्स अनकंफर्टेबल। ठीक है, she will succeed in life even if she face some initial failure. Make another sentence so that you will be comfortable with this conjunction. चलिए सेंटेंस बनाइए क्विकली। इन सबका लिटरल मीनिंग अगर आप देखें तो यद्यपि ही होता है। Ma'am, they get up early in the morning to get a good marks. मानसी, आप मेरी बात समझ रहे हैं कि आपको सेंटेंस बनाने हैं विद यूजिंग दीज वर्ड्स, इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए, जैसे कि इवन इफ हो गया, है ना, इवन इफ हो गया, ऑन कंडीशन दैट, इन ऑर्डर दैट, इन वर्ड्स का यूज करके बनाना है आपको। चलिए क्विकली मेक एवरीवन सेंटेंसेस। 22 students are present here. Let's say 21 students are here, but only 1 or 3 are responding. Why? Please, everyone participated. Prabjot, I understand that you are writing the sentences. Very good. What about others?
I will Ma'am, take food on condition that you will get not overloaded. Correct. ma'am, she will succeed in life even if she gets the job. Please repeat, Mansi. Ma'am, she will succeed in life even she gets the job. Even she not get the job, है ना? Success Yes. होना और एक similar sound करता है. I will go for a run even if it's rain outside. She even paid for my drink. It is only even. Chaliye, it's okay. Let's move forward. We have completed the conjunction. Is there any doubt in conjunction? Ask me. I revise you once again to everyone. Please focus. Okay. Quickly, I'll make you revise it. Chaliye. What is conjunction? Conjunction are group of words that are used to connect. Conjunction used to connect word, phrases or clauses. ठीक है? Types of conjunction. There are 4 types of conjunction. First is coordinate conjunction, subordinate conjunction and correlative conjunction, compound conjunction. ये 4 तरह की conjunction हमने देखी है. ठीक है? चलिए. Next is इंडिपेंडेंट क्लॉज. जो आपका कंपाउंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है उसमें आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज होगा. यू आर कनेक्टेड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब जो खुद के जिनका सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का एग्रीमेंट होगा. मतलब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आपके उसमें देखने को मिलेंगे. फर्स्ट इज दिस एंड सेकंड इज दिस. He read the notes and returned it to me. He came to meet me but I was not at home. ठीक है? वो मुझसे मिलने आया था लेकिन मैं घर पर नहीं था. There are 4 types of coordinating conjunction. कौन सा? Cumulative conjunction, alternative conjunction, adversative conjunction and elative conjunction. Cumulative मतलब होता है कनेक्ट करना, जोड़ना. इसका काम है जोड़ना. Alternative मतलब होता है चॉइस. ठीक है? इट्स गिव यू चॉइस. जैसे आइदर सिट क्वाइटली और गो अवे. या तो शांत बैठो वरना जाओ. ठीक है? एडवर्सेटिव मतलब ये जो सेंटेंस होते हैं ये ऑपोजिट वर्ड्स को ऑपोजिट सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं. यहाँ पर जो कंजंक्शन होगी वो ऑपोजिट सेंटेंस को कनेक्ट करेगी. ही इज रिच. वो अमीर है लेकिन फिर भी खुश नहीं है. उल्टे होंगे बिल्कुल. वो मेहनती है लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं हो पा रहा. ठीक है? वो गरीब है लेकिन फिर भी खुश है. समझ आया? तो ये आपके ऑपोजिट साउंड्स करेंगे. इलेटिव मतलब होता है रिजल्ट ओरिएंटेड. रिजल्ट ओरिएंटेड मतलब इन वर्ड्स इन सेंटेंसेस में आपको कुछ रिजल्ट देखने को मिलेगा. आई वॉज इल सो आई कुड नॉट कम. मैं बीमार था इसलिए नहीं आया. है ना? और क्या बोल सकते हैं आप? वो शैतान है इसलिए गिर गया. ठीक है? समझ आया? तो ये आपके रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं. नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. सबऑर्डिनेटिंग मतलब कि ये आपके क्लॉजेस और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होंगे. इसमें देयर इज नो इंडिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है? इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड. अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें सक्सेस मिलेगी. सिंस आई वॉज बिजी. मैं बिजी था लेकिन I could not receive your call. That's why I could not receive your call. मैं बिजी था इसलिए आपका कॉल नहीं उठा पाया. चलिए, ये आपके टाइम, प्लेस, पर्पस और कंपैरिजन के अकॉर्डिंग यूज किए जाएंगे. अगर आप टाइम की बात करोगे तो टाइम के लिए क्या यूज करते हैं हम? when मतलब कब. ठीक है? और प्लेस के लिए क्या यूज करते हैं हम? कहाँ. wherever, where.
पर्पस मतलब होता है उद्देश्य क्या है। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। चलिए, कंपैरिजन मतलब कि आप दो चीजों का कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन बिटवीन टू, जैसे कि एज, सो एज, देन, ही इज बेटर देन यू, वो तुमसे बेहतर है। ही इज एज गुड एज हिज फादर, वो अपने फादर की तरह ही अच्छा है। अ वाइस एनिमी इज बेटर देन अ फुलिश फ्रेंड, एक समझदार दुश्मन बेहतर होता है एक बेवकूफ दोस्त से। नेक्स्ट इज कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन आर ऑलवेज यूज्ड इन पेयर, ये हमेशा ग्रुप में यूज होंगे, जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, आई डू नॉट नो वेदर ही विल कम और नॉट। ठीक है, नेक्स्ट इज, मैं आपको समझा चुकी हूँ, बस मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ। गॉट इट एवरीवन? कोई डाउट है तो पूछिए। नेक्स्ट इज कंपाउंड कंजंक्शन। कंपाउंड कंजंक्शन में आप क्या जोड़ते हैं? सेंटेंसेस को जोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स की मदद से। ग्रुप ऑफ वर्ड मतलब दो से ज्यादा है ये आपके, जैसे कि इन ऑर्डर दैट, ऑन कंडीशन दैट, इवन इफ, as well as, so that, provided that. चलिए, he scolded me even if he was my father. I will give you money on condition that you will not misuse it. समझ आया? Is there any doubt? Ask me. Oh, yes. That is quick revision. सोना नहीं आप लोगों को, ठीक है? I hope everyone getting it. मैम इन ऑर्डर दैट का सेंटेंस क्या होगा और प्रोवाइडेड दैट का? आप बनाइए अब एक quickly एग्जांपल में. तो दीजिए। Anyone is there to give the example of in order that? यस यस, इन ऑर्डर दैट का मतलब होता है, ऑर्डर मतलब कि इस हिसाब से, है ना? ओके, यस, बनाइए क्विकली सेंटेंस। माय पर्पस इज नॉट टू टीच यू द फ्यू सेंटेंसेस एंड आप लोग उनको ही अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। माय पर्पस इज दैट कि मैंने आपको पढ़ा दिया है, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसके अंदर एडिशन करते रहें। मैम एवरी डे रीड न्यूज़पेपर और बुक। मानसी, आप कुछ और पढ़ रहे हो क्या, या जो मैं पढ़ा रही हूँ आप वही पढ़ रहे हो? मैम जो आप पढ़ानी वो पढ़ रहे हैं। फिर आप मीनिंग उल्टे क्यों बना रहे हो? जो मैंने आपको बोला इन ऑर्डर दैट से आपको बनाना है, ठीक है मानसी? ओके मैम। यू आर वेरी ब्रिलियंट गर्ल, प्लीज फोकस व्हाट आई एम सेइंग ओनली, ओके? चलिए चलिए बताइए। इन ऑर्डर दैट को आप सो दैट बी की तरह भी यूज कर सकते हैं, बोथ आर सेम। ओके। चलिए मैं आपको सेंटेंस बनाकर बताती हूँ। आई विल प्रोवाइड यू टाइम टेबल, आई विल प्रोवाइड you timetable in order that you will follow it. ठीक है, in order that you will prepare according it. ठीक है, तो in order that मतलब आप किसकी तरह यूज कर सकते हैं? so that की तरह। so that का मतलब सबको पता है? यस मैम। बताइए। क्लियर एवरीवन? इन ऑर्डर दैट की अगर मैं आपको टिपिकल हिंदी बताऊं, इन ऑर्डर दैट मतलब, ऑर्डर मतलब क्रम, है ना, सीक्वेंस। समझ गए? मैम इन ऑर्डर दैट मतलब कि हिसाब से, है ना, इस सीक्वेंस में, इस तरीके से आप उस काम को कर सके। हाँ जी बताइए। मैम I helped to her in order that he solve her
he solves her problem. बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, आई हेल्प हिम सो दैट ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप सो दैट को और इन ऑर्डर दैट को अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। देयर आर लॉट्स ऑफ कंजंक्शन, जितना मैंने आपको बताया है ना, इससे भी कहीं ज्यादा कंजंक्शन है, और Ma'am, लगभग सबके जो मीनिंग है वो सिमिलर साउंड करते हैं। गॉट इट? चलिए, इज I देयर will एनी डाउट? आस्क मी। I will हाँ provide food. बताइए। I will provide food in order that you take it. ओके, गेट इट, करेक्ट। ठीक है, just try, doesn't matter you are making it right or wrong, just try it. Okay, chaliye, I hope there is no doubt. If there any doubt, ask me in conjunction. Everybody have to respond quickly. समझ आया सबको? Yes, ma'am. Let's move forward. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. चलिए, देख लीजिए एक बारी आप लोगों का, क्या मैंने आपको वैसे बताया हुआ है, व्हाट वी विल डू। रीडिंग हमने कर लिया है ना, हाउ टू रीड, पढ़ते कैसे हैं, हमने क्या देखा था कि पढ़ते वक्त आपको क्या बातें याद रखनी है। यूज टू कनेक्ट, है ना, अल्फाबेट को जोड़ेंगे तो वर्ड बनाएंगे आप, वर्ड को जोड़ेंगे तो सेंटेंस बनेगा, और सेंटेंस को जोड़ेंगे तो इंग्लिश बनेगी। इस हिसाब से आप रीडिंग कर सकते हैं। और रीडिंग करने के क्या तरीके हैं? सबसे पहले आपको क्या करना है? स्कीमिंग। ठीक है, स्कीमिंग करनी है। स्कीमिंग मतलब कि आपको सिर्फ पढ़ना है, ऊपर ऊपर से देखना है कि क्या वो कह रहा है। एक बार आपको रीडिंग कर लेनी है जो आप पढ़ पा रहे हैं, उसके बाद आपको स्कैनिंग करनी है। स्कैनिंग मतलब आप जो सेकंड रीडिंग आप करेंगे उसमें आपको समझ आना चाहिए थोड़ा बहुत कि वो किस बारे में बात कर रहा है। जैसे कि मान लो मैं एक पेज पढ़ रही हूँ, उसमें पॉवर्टी के बारे में लिखा है, तो जब मैं सेकेंड टाइम पढ़ूंगी तो मुझे पता लग जाना चाहिए कि उसके अंदर पॉवर्टी के बारे में लिखा है। पॉवर्टी मतलब गरीबी के बारे में लिखा है कि व्हाट इज द रीजन, है ना, व्हाट इज द रेशो, व्हाट इज बीपीएल, एपीएल, तो उसमें मुझे पता लगना चाहिए कि इनका क्या मतलब है। नेक्स्ट इज इंटेंसिव रीडिंग। ठीक है, इस बार जो रीडिंग मैं करूंगी वो मैं नोट्स बनाने के पर्पज से करूंगी। बिल्कुल ध्यान से मुझे पढ़ना है और समझना भी है इस स्टेज पे। ठीक है, तो ये 3 तरीके से आप पढ़ सकते हैं। व्हाट इज द वे टू मेक योर रीडिंग बेटर? यू कैन रीड न्यूज़पेपर एवरी डे, यू कैन रीड एनी बुक। और देखिए, देयर इज नो ट्रिक ऑफ रीडिंग, रीडिंग करने के लिए कोई ट्रिक नहीं होती है, जस्ट प्रैक्टिस। और मैं आपको बता देती हूँ ये बात कि अगर आपको रीडिंग नहीं आती है, इफ यू आर अनेबल टू रीड, है ना, तो इंग्लिश बिकम डिफिकल्ट फॉर यू। इंग्लिश आपके लिए डिफिकल्ट हो सकती है, क्योंकि पूरी इंग्लिश किस पे डिपेंड है? रीडिंग पे डिपेंड है। अगर मैं कोई वर्ड लिखती हूँ, if you are unable to get it, then what is the use of it, है ना। मान लो मैंने लिखा कोई वर्ड, जैसे मैंने लिखा एजुकेशन, है ना, जो इस वर्ड को पढ़ पा रहा है वही कोशिश करेगा कि मैं इस एजुकेशन का मतलब जानूं। एजुकेशन का मतलब, जैसे कि इसका मतलब क्या होता है? शिक्षा, अच्छा, है ना। yes, तभी yes. जाकर मैं क्या करूंगी, इस एजुकेशन पे सेंटेंस बना पाऊंगी, दैट एजुकेशन इज गुड फॉर एवरीवन, है ना, एजुकेशन इज गुड फॉर एवरीवन। आई एम नॉट राइटिंग प्रॉपर। ठीक है, उसके बाद आप इसके ऊपर और कोशिश करेंगे, तभी तो आप अपनी ग्रामर को अप्लाई कर पाएंगे। जिन्हें रीडिंग आती है वेल एंड गुड, जिन्हें नहीं आती
प्लीज फर्स्ट फोकस ऑन योर रीडिंग, अपनी रीडिंग पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। उसके बाद रीडिंग हमने कर लिया है, आप में से किसी को कोई डाउट है, क्या करेंगे आप रीडिंग के लिए, रोज पढ़िए, आपके साथ जो बैठा है उससे पूछ लीजिए कि ये क्या लिखा है, इस वर्ड को क्या पढ़ते हैं, जैसे ये स्कोल्डेड लिखा है तो इसको स्कोल्डेड पढ़ते हैं, ठीक है। फेस पढ़ते हैं इसे, सक्सीड पढ़ते हैं इसे, आपको पढ़ना आना चाहिए। सेकेंड, हम अपने राइटिंग पार्ट पर बात करेंगे, ठीक है। राइटिंग में आपको क्या दो चीजें आनी चाहिए, राइटिंग में आपको ग्रामर प्रॉपर पता होना चाहिए और स्पेलिंग्स। मैम जो स्कॉल्डेड का क्या मतलब है? डांटना, स्कोल्ड मतलब डांटना, ओके। ठीक है। जब भी आप रीडिंग करते हैं ना, प्लीज आप अपनी वोकैब पे, ठीक है, वोकैबुलरी मतलब हम जब छोटे थे तो हमें बोलते थे वर्ड मीनिंग, है ना, आप अभी वर्ड मीनिंग की तरह पढ़ा कीजिए। आपने मान लीजिए एक लाइन पढ़ाई, ठीक है, और उस लाइन में आपको लगता है कि 1, 2 और 3 वर्ड्स का मतलब मुझे नहीं पता है, तो आप आगे मत बढ़िए, अभी आप क्या कीजिए, पहले उन 3 वर्ड्स के मीनिंग गूगल कर सकते हैं या आप किसी से पूछ सकते हैं, ठीक है, ये आप कर सकते हैं, समझ आया। तो आपको वो 3 वर्ड क्लियर होंगे, ऐसे धीरे धीरे करके आपको पूरी इंग्लिश क्लियर होगी, समझ आया। प्लीज एफर्ट्स इज योर, माय वर्क इज टीच यू, मैं या फिर कोई भी टीचर होगा या इस दुनिया में कोई भी पर्सन होगा, वो सिर्फ आपको गाइड कर सकता है ना। छोटे बच्चों को हम फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक गाइड ही करते हैं, उसके बाद जाकर वो 12th के बाद कोई एक्शन लेते हैं अपनी लाइफ में, क्या उन्हें बनना है, क्या उन्हें लाइफ में करना है। तो ये जो 1st to 12th का पार्ट होता है ना, दैट इज ओनली गाइडिंग पार्ट, कि हम सिर्फ गाइड करते हैं कि आप क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में और स्टूडेंट्स को, बट यू ऑल आर क्रॉसिंग दिस एज, है ना। तो अब जो टाइम है वो टाइम है कि आप लोग एफर्ट्स डालें अपनी तरफ से। देखिए, एफर्ट से, मेहनत, हार्ड वर्क एक ऐसी चीज है जिसको आप करके आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। पुट द एफर्ट्स दैट मच यू कैन, एक बार ही सीख जाएंगे ना, फिर बहुत सिंपल होगा, आपको लगेगा कि ये भी कुछ प्रॉब्लम वाली बात थी जो मैं सोच रहा था। चलिए, राइटिंग में आपको क्या ध्यान देना है, ग्रामर और स्पेलिंग पर ध्यान देना है। स्पेलिंग के लिए क्या करना चाहिए हमें, स्पेलिंग के लिए मान लीजिए कि कोई वर्ड की स्पेलिंग आपको नहीं याद हो रही है, लेट्स टेक एजुकेशन, इसकी स्पेलिंग आपको नहीं याद हो रही है, तो क्या कीजिए, इसे 5 बारी बोलिए, स्पीक लाउडली, ठीक है, और इफ यू वांट 3 बार इसे लिखिए। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि कोई भी ऐसी स्पेलिंग नहीं होगी जो आपको नहीं आती होगी, ठीक है। प्रीजुडिस, प्रीजुडिस मतलब बताइए। अब हम एक काम करते हैं, मैं आपको रोज ना 5 वर्ड्स दूंगी और उनके मीनिंग भी बताऊंगी, और आपको क्या करना होगा, उन वर्ड्स पे सेंटेंस बनाने होंगे। तो ऐसे करते करते आप लोग 5 वर्ड्स तो डेली प्रिपेयर कर ही लेंगे, है ना। सिंपल वर्ड्स देंगे हम आपको, गॉट इट, ठीक है। मैं आपको रोज 5 वर्ड दूंगी, मुझे याद दिला दीजिएगा आप एट द एंड, ठीक है। तो आप उन 5 वर्ड्स पे फोकस करें, है ना, और उन 5 पे सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। चलिए, उसके बाद अल्फाबेट और नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट इज स्पीकिंग। स्पीकिंग के लिए जरूरी नहीं है कि आपको ग्रामर आनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि आपको स्पेलिंग आनी चाहिए। फॉर स्पीकिंग आप क्या करेंगे, मोस्टली प्रैक्टिस, बोलिए, ठीक है, गलत सही जैसा बोल रहे हैं बोलिए, बिकॉज इट नीड्स कॉन्फिडेंस। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हम गलत बोलते हैं, लेकिन सामने वाले को नहीं पता होता कि आप गलत बोल रहे हैं, क्यों, बिकॉज हम इतने कॉन्फिडेंस से वो वर्ड्स बोलते हैं
बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग, हमसे भी गलती हो सकती है. बट इफ यू आर सेइंग इन कॉन्फिडेंस, इट विल क्या बोल सकते हैं हम उसे, कि इट विल नेग्लेक्टेड, है ना. द पर्सन विद नेग्लेक्ट योर मिस्टेक, या आपने कुछ गलत भी बोला, कोई बात नहीं, चलता है इतना. फॉर स्पीकिंग you need confidence. ठीक है. So for confidence you can do is practice. चलिए 5 सेंटेंस ले लीजिए आज के आप. फर्स्ट इज योर स्ट्रेंज. स्ट्रेंज मतलब, स्ट्रेंज अजीब, मतलब अजीब, अजनबी, है ना. अनोखा मैम अजनबी. अजनबी अजनबी, अजनबी मैम. अजनबी भी बोल सकते हैं और अजीब भी बोल सकते हैं. अगर आप किसी चीज के लिए यूज कर रहे हो तब आप अजीब यूज करोगे, और अगर आप किसी पर्सन के लिए यूज कर रहे हो तब आप स्ट्रेंज यूज करोगे. ही इज स्ट्रेंजर, वो अजनबी है. वी वेंट अ स्ट्रेंज प्लेस, हम एक स्ट्रेंज प्लेस पे गए थे. जो हम, ऐसी चीज जिसके बारे में आपको नहीं पता, जिसको आप पहली बार देख रहे हैं, दैट इज स्ट्रेंज. ठीक है. Yes, ma'am. चलिए, डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन मतलब लगन कह सकते हैं. किसी काम को करने के लिए आपकी लगन या दृढ़ निश्चय, है ना. दृढ़ निश्चय, आपने ठान लिया है वो काम को करना है. सॉरी, दैट इज डेडिकेशन. मैम डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन. हाँ, डिटर्मिनेशन मतलब होता है किसी चीज को डिटरमाइन करना, पता लगाना. और डेडिकेशन मतलब होता है किसी चीज के लिए आपका दृढ़ संकल्प. ठीक है. इसे नेक्स्ट लिख लीजिए, डेडिकेशन. मैडम साफ साफ लिख दीजिए ना. अरे बेटा, थोड़ा माइंड यूज कीजिए अपना, है ना. साफ साफ नहीं लिख पा रही हूँ मैं. देयर इज नो प्रॉपर पेन आई हैव. चलिए, स्ट्रेंज की स्पेलिंग है STRANGE, स्ट्रेंज. और नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन, DETERMINATION. और थर्ड इज डेडिकेशन, DEDICATION, डेडिकेशन. There is no blank page, I think. चलिए, fourth is what you want. Console. कंसोल मतलब होता है दिलासा देना. ऐसे बोलते हैं ना, कोई प्रॉब्लम में है तो उसको कंसोल करना, दिलासा देना. ठीक है. मैम कोई प्रॉब्लम, हाँ जी, आप मैम उसकी इसका प्रॉब्लम को हाँ इसका जी. वर्ड बनाने हैं क्या मैम? सेंटेंस बनाने हाँ, हैं? इसके वर्ड, यस, सेंटेंस बनाने हैं आपको ठीक इसके. है मैम. गुड इवनिंग. चलिए, हेडेक. ठीक है. हेडेक तो आप सबको पता ही होगा. हेडेक मतलब सर दर्द मैम, सर दर्द. सर दर्द. और एक मतलब क्या होता है, एक, एक मतलब होता है दर्द. अगर उसके आगे हेड लगा देंगे तो हेडेक हो जाएगा, है ना. और अगर आप कुछ और वर्ड लगा देंगे तो उसका दर्द हो जाएगा. गॉट इट. तो एक मतलब होता है दर्द. समझ आया. ये 5 वर्ड्स हैं जो आपको सेंटेंस बनाकर लाने हैं. गॉट इट. इज देयर एनी डाउट? No, ma'am. कितने सेंटेंस में? Okay. वन एक या मैम, एक तो ज्यादा बनाने. हाँ जी, यस गुरप्रीत. एक वर्ड ते एक सेंटेंस ही बनाना ਜਾਂ जैसे कि 5 ਜਾਂ ज्यादा बनाने. एक वर्ड पे आप 2-2 सेंटेंस बना लीजिएगा, बोथ आर डिफरेंट. ओके. 10 सेंटेंस हो जाएंगे तो बेटर प्रिपरेशन होगा. गॉट इट. यस. ठीक है जी. काम करने के बाद आपको ग्रुप में सेंड करना है. डन. चलिए, Okay. ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन.
keep learning and keep studying. Whatever your Ma'am, doubt, ask me to more. हाँ जी, Ma'am, dedication means डेडिकेशन मतलब किसी काम के लिए आपकी प्रॉपर लगन है, आप उस काम को प्रॉपर लगन से करना चाहते हैं, दैट इज डेडिकेशन. yes, ma'am. Okay. All five the very words best to all बना of के you. लानी If you want to take, नहीं Ma'am, बेटा, five words. 2 words बनाने हैं, 2 words Okay, बनाने ma'am. हैं, 2 words. Thank you, Take ma'am. screenshot if you want. Take it another, ये नीचे वाला पोर्शन मत लीजिएगा. चलिए, all the very best to everyone. Keep learning and keep studying. Complete your homework. Got it? चलिए.